یہ واقعہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں درج ہے اور بہت مشہور و معروف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ادھم نامی ایک درویش قلندر تھے جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ بلخ شہر پہنچے اور شہر کے باہر ایک جھونپڑی بنا کر اس میں رہنے لگے۔ ایک دن کسی ضرورت کے تحت وہ شہر گئے۔ اتفاق سے اسی وقت بلخ کے بادشاہ کی بیٹی باغ کی سیر سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں شاندار انتظامات کیے گئے تھے۔ راستے کے دونوں طرف عورتیں اور بچے جمع تھے جو شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ادھم فقیر بھی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب شہزادی کی پالکی ان کے برابر سے گزری تو تیز ہوا کی وجہ سے اچانک پالکی کا پردہ اٹھ گیا۔ ادھر فقیر کی نظر جب شہزادی کے رخ زیبا پر پڑی تو وہ دل و جان سے اس پر عاشق ہو گئے۔ خوشی خوشی وہ شہزادی کی سواری کے پیچھے بادشاہی محل تک جا پہنچے اور دیر تک باہر کھڑے رہے۔ جب سواری محل کے اندر چلی گئی تو انہوں نے ایک خادم سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے اور اس پالکی میں کون سوار تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ شاہی محل ہے اور اس پالکی میں شہزادی صاحبہ سوار تھیں جو باغ کی سیر کے لیے تشریف لے گئی تھیں۔ یہ سن کر ادھم فقیر سیدھے بادشاہ کے دربار میں پہنچے جہاں دربار لگا ہوا تھا۔ فقیر بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس فقیر سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وزیر فقیر کے پاس گیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ ادھم فقیر نے بغیر کسی خوف اور جھجک کے سارا ماجرا بیان کر دیا اور کہا، میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی میری زوجیت میں دے دے۔ فقیر کی بات سن کر وزیر کو سخت غصہ آیا لیکن شاہی آداب کے باعث خاموش رہا۔ وہ بادشاہ کے سامنے واپس آ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ تب بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا، بلا جھجک حقیقت حال سے مجھے آگاہ کرو۔ وزیر نے آداب بجا لاتے ہوئے عرض کی، جہاں پناہ، جو کچھ اس فقیر نے کہا ہے میری غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے اپنی زبان پر لاؤں۔ جب بادشاہ نے بار بار اصرار کیا تو وزیر نے فقیر کی کہی ہوئی بات منوعاً بادشاہ کے سامنے بیان کر دی۔ بادشاہ یہ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہا اور سر جھکا لیا۔ پھر اس نے ادھم فقیر کو اپنے سامنے بلایا اور پاس بٹھا لیا۔ بادشاہ نے اس کا حسب و نسب دریافت کیا۔ جب اسے فقیر کی عالی نسبی کا علم ہوا تو اس نے کہا، اے درویش، جمع خاطر رکھو، تمہاری عالی نسبی کی وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھوڑا صبر کرو۔ میں پہلے شہزادی کی والدہ اور خود شہزادی سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ ادھم فقیر بادشاہ کے اس جواب سے خوش ہو کر اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئے۔ ادھم فقیر نے 3-4 دن انتظار کیا اور پھر بادشاہ بلخ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سلام کرنے کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ بلخ کا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی ادھم فقیر سے کرنے پر راضی تھا، لیکن اس کا وزیر کسی صورت اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بادشاہ کی بیٹی، جو کہ ایک شہزادی ہے، ایک فقیر سے بیاہ ہی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وزیر اس بات پر متفق نہیں ہوا تو بادشاہ نے کہا، میں نے اس فقیر سے وعدہ کر لیا ہے، اب اس کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں اور کیسے انکار کروں؟ مجھے اس صورتحال پر بہت ندامت محسوس ہوتی ہے۔ وزیر نے جواب دیا، جہاں پناہ، یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ خود کچھ نہ کہیں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ وزیر نے ایک منصوبہ تیار کیا، شاہی خزانے سے سب سے قیمتی اور نایاب موتی نکالا اور ادھم فقیر کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر وزیر نے کہا، اگر تمہیں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس طرح کا ایک اور موتی لا کر دو تاکہ یہ جوڑا بن سکے اور شہزادی کے گوشوارے تیار کیے جا سکیں۔ ادھم فقیر نے وزیر کی یہ بات سنی اور کہا، اچھا، یہی چاہیے؟ وزیر نے کہا، ہاں بالکل، ایسا ہی ایک اور موتی چاہیے۔ ادھم فقیر نے وزیر سے پکا وعدہ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ فقیر کو معلوم تھا کہ اس طرح کے نایاب موتی دریا سے نکالے جاتے ہیں، لہٰذا وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر ادھم فقیر دریا کا پانی باہر نکالنے لگے۔ کھانا، پینا، سونا سب کچھ بھول گئے اور صبح و شام اسی کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور درویش سے پوچھا، اے درویش، اللہ تعالیٰ نے تیری محنت کو قبول فرما لیا، اب ہاتھ روک لے، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تیری مراد پوری کروں، بتا تو کیا چاہتا ہے؟
उधम फकीर ये सुनकर बहुत खुश हुए। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और अर्ज की, ऐ नबी खुदा, आपने मुझे मेहनत से क्यों रोका? चंद लम्हे भी अगर ज़ाये हो गए तो मुझे अपनी नाकामी का खदशा है। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दरवीश, अगर तुम 1000 साल तक भी दरिया से पानी निकालते रहो तो ये दरिया खशक नहीं होगा। बेहतर ये है कि तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो ताकि अल्लाह अज़्वजल इसे आसान फरमाए। उधम फ़कीर ने अपनी पूरी दास्तान हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर दी। हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ सुकून से बैठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने इतने ज़्यादा मोती ढेर कर दूंगा कि तुम उन्हें ले जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। उधम फ़कीर खामोश होकर बैठ गए। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए। इसी वक्त दरिया में तलातुम पैदा हुआ, लहरें बुलंद होने लगें और दरिया उभरने लगा। बेशुमार मोती और सीपियां दरिया के किनारे जमा हो गईं। फिर गैब से एक आवाज़ आई, ए दरवीश, जितने मोती लेना चाहते हो यहां से ले लो। उधम फ़कीर ने सजदा शुक्र अदा किया और दौड़कर सीपियों से मोती निकालने लगे। उन्होंने अंडे के बराबर 12 नायाब और कीमती मोती चुने जो किसी भी बादशाह के खजाने में मौजूद नहीं हो सकते थे। उधम फ़कीर इन मोतियों को लेकर बल्ख शहर वापस आ गए। रात किसी तरह अपनी झूनपड़ी में गुजारी। सुबह होते ही नमाज और वज़ाइफ से फारिग होकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने वो 12 मोती बादशाह के सामने रख दिए और कहा, आपने मुझसे सिर्फ एक मोती की फरमाइश की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने ज़्यादा मोती अता किए कि अगर आप उन्हें देखें तो आपकी आंखें खैरा हो जाएं। आधी रात का सुनाटा हर सो छाया हुआ था, लेकिन उसकी बेकरारी में लम्हा बह लम्हा इजाफा हो रहा था। बेचैनी हद से बढ़ी तो वो बेलचा थामे मकबरे की तरफ रवाना हो गया। पहरेदारों की नज़रों से बचते हुए दब्बे कदमों खीमों के दरमियान से गुजरता हुआ वो अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंचा। धड़कते दिल के साथ उसने जल्दी जल्दी कब्र खोदी और जब वो नर्म मिट्टी हटाता गया तो शहजादी का बेजान जिस्म सामने आ गया। तड़पते दिल, कानिपते हाथों के साथ उसने लाश को निकाला, कब्र को दोबारा पहले जैसा दुरुस्त किया और शहजादी के जसद को अपने कंधे पर डालकर अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। झोंपड़ी में पहुंचकर उसने शहजादी के बेजान जिस्म को दीवार से लगाकर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर टकटकी बांधकर उसे देखने लगा। चांदनी रात की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा हुसैन लग रहा था, मगर इस हिस्न में जिंदगी की रमक न थी। वो अभी शहजादी के चेहरे को टिके जा रहा था कि अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो घबरा गया, कहीं ये बादशाह के जासूस तो नहीं। ये सोचकर वो फौरन झूनपड़ी के तहखाने में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद दरवाजा चरचराते हुए खुला और एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। वो एक बूढ़ा हकीम था जो बल्ख शहर से आया था, मगर रात ज्यादा होने की वजह से शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। ठिकाना न मिलने के सबब वो किसी पनाहगाह की तलाश में था। झोंपड़ी में रोशनी देखकर वो ये सोचकर अंदर आया कि शायद ये किसी दरवीश का आस्ताना हो, मगर अंदर दाखिल होते ही वो हैरत में डूब गया। दीवार के सहारे एक हुसीन और जमील दोशीज़ा बैठी थी, जिसकी खूबसूरती तिलस्माती मालूम हो रही थी, मगर उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार न थे। हकीम ने तजब्जब के आलम में उसका तबी मायना किया। नब्ज चेक की तो उसे एहसास हुआ कि ये लड़की मुर्दा नहीं बल्कि सुबात के मर्ज में मुब्तला है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान मुर्दा मालूम होता है मगर दरहकीकत वो जिंदा होता है। हकीम ने फौरन अपने थैले से एक खास दवा निकाली, शहजादी के बाजों से थोड़ा सा खून निकाला और दवा लगा दी। कुछ ही लम्हों में शहजादी ने आंखें खोल दी। जैसे ही उसने होश में आकर अपने सामने एक अजनबी को देखा, वो घबरा गई और लरजती आवाज में बोली, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? हकीम ने शफकत भरे लहजे में कहा, बेटी, मैं खुद नहीं जानता। मैं तो एक मुसाफिर हूँ, रात गुजारने के लिए पनाहगाह तलाश कर रहा था कि इस झोंपड़ी में रोशनी देख कर आ गया। यहाँ कोई नहीं था, बस तुम्हें देखा, तुम्हारे मर्ज को पहचाना और अल्लाह के करम से तुम्हें शफा मिल गई। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए और तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया? इसी दौरान झोंपड़ी के एक कोने से आहट हुई। दरवीश कलंदर जो तहखाने में छिपे हुए थे बाहर निकल आए और हकीम पर नजर पड़ते ही उनके करीब जा बैठे। हकीम ने उनसे हकीकत हाल दरियाफत की, जिस पर दरवीश ने तमाम माजरा आगाज से अंजाम तक तफसील से बयान कर दिया। हकीम कुछ देर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा,
फिर मुस्कुराते हुए बोला, अल्लाह की मसलहतें निराली हैं, जो होता है बेहतर ही होता है। कुछ दिनों बाद दरवीश कलंदर और शहजादी को निकाह के मुकद्दस बंधन में बांध दिया गया। दोनों ने झोंपड़ी में रहना शुरू कर दिया और अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत और सालेह बेटे से नवाजा, जिसका नाम इब्राहीम रखा गया। इब्राहीम बड़ा होने लगा और बचपन से ही ज़हानत व फतानत के जौहर दिखाने लगा। वालिदैन ने उसे एक मकतब में तालीम हासिल करने के लिए दाखिल करा दिया। एक दिन बल्ख के बादशाह का मकतब के करीब से गुजर हुआ। बादशाह का मामूल था कि जब वो किसी मकतब के करीब पहुंचता तो उसमें दाखिल होकर इसातिज़ा और तलबा से मुलाकात करता, उन्हें इनामात देता और बच्चों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टी का ऐलान करता। जब इस दिन भी बादशाह ने छुट्टी का ऐलान किया और बच्चे खुशी खुशी बाहर निकलने लगे तो उसकी नज़र एक हुसीन और जमील लड़के पर पड़ी, इब्राहीम बिन उदहम। इसके चेहरे की मासूमियत और नूरानियत देखकर बादशाह जैसे मबहूत हो गया। वो बच्चे को गौर से देखता रहा, जैसे वो उसकी सूरत में किसी अपने का अक्स तलाश कर रहा हो। बादशाह ने मकतब के मुअल्लिम से दरियाफ़त किया, ये बच्चा किसका है? मुअल्लिम ने अदब से जवाब दिया, ये एक अजीम दरवीश कुलंदर का बेटा है, जो हर रोज़ खुद उसे यहाँ छोड़ने आते हैं और छुट्टी के वक्त वापस ले जाते हैं। बादशाह ने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर धीमे लहजे में बोला, मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जब दरवीश कुलंदर छुट्टी के वक्त अपने बेटे को लेने मकतब पहुंचे तो मुअल्लिम ने उन्हें दौर से देखते ही दौड़कर सारा माजरा सुनाया। दरवीश कुलंदर ने खबर सुनकर कोई इत्तराब जाहिर नहीं किया, बल्कि इत्मीनान से बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। महल में पहुंचने पर इन्हें फौरन इज्जत व एहतराम के साथ बादशाह के हुजूर बैठाया गया। बादशाह ने बगूर उनका चेहरा देखा और फौरन पहचान लिया कि ये वही दरवीश हैं जिनके बारे में वो पहले सुन चुका था। दरवीश कुलंदर ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा, बादशाह सलामत, मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे को लेने आया हूँ। इसकी माँ उससे बेपनाह मोहब्बत करती है और अगर वो फौरन अपने बच्चे से न मिली तो वो अपनी जान दे देगी। बादशाह ने दरवीश की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, उस लड़के की माँ कौन है और वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? खुदा के वास्ते मुझे सच सच बताइए। ये सुनकर दरवीश कुलंदर ने सच्चाई से तमाम हकीकत बयान कर दी। अपनी बीवी यानी बादशाह की बेटी की पूरी दास्तान सुनाई कि किस तरह वो मर चुकी समझ ही गई, कैसे वो दरवीशी के साथ जिंदगी बसर कर रही है और किस तरह वो एक सादा झोंपड़ी में रह रही है। बादशाह ये सब सुनकर हैरत में डूब गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, बेशक अल्लाह की रिजा में ही बेहतरी है। ये खुशखबरी सुनते ही बादशाह ने फौरन अपनी मुल्का को इतला दी। वो भी बेहद मसरूर हुए और दोनों ने एक ही वक्त में फैसला किया कि वो अपनी बेटी से मिलने जाएंगे। चुनांचा बादशाह, मुल्का, इब्राहीम बिन अदहम और महल के चंद खास अफराद एक शानदार सवारी में बैठकर दरवीश की झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। जब शहजादी ने दौर से अपने माँ बाप को आते देखा तो वो खुशी से बेअख्तियार दौड़ती हुई उनके कदमों में जा गिरी और रोते हुए सलाम किया। बादशाह और मलका ने बेकरार होकर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और सब खुशी के आंसू बहाने लगे। इस मुलाकात के बाद बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद को महल वापस चलने की दावत दी और एक बड़ी जागीर और कई इलाके तोहफे में देने का ऐलान किया ताकि वो एक आरामदह और शाहाना जिंदगी बसर कर सकें। मगर दरवीश कुलंदर और शहजादी ने बादशाह की ये पेशकश नरमी से ठुकरा दी। उन्होंने कहा, हमारे लिए सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी ही सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनकर बादशाह और मलका हैरत में पड़ गए, मगर दोनों ने उनकी पसंद का एहतराम किया और उनकी खुशी में खुश रहे। अलबत्ता बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद की रज़ामंदी से सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया, क्योंकि वो अपनी किसी भी बीवी से साहब औलाद न थे। कुछ दिनों के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। जब ये खबर सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम तक पहुंची तो वो खौफ से कांपने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आने के बाद किसी ने उनसे पूछा, जब मैंने आपसे सवाल किया था कि आप कौन हैं तो आपने फौरन जवाब क्यों नहीं दिया? इब्राहीम बिन उदहम ने आंखें झुकाकर जवाब दिया, मुझे खौफ था कि अगर मैंने खुद को अल्लाह का बंदा कहा तो अल्लाह मुझसे हक की बंदगी तलब करेगा, और अगर मैं उसका जवाब न दे सका तो क्या करूँगा? इनकार की भी मजाल न थी। यही खौफ खुदा और सादगी उनकी पूरी जिंदगी में नुमायां था। एक मर्तबा वो अपने दरवीश साथियों के साथ एक वीरान जगह पहुंचे जहां लकड़ियां पड़ी थीं।
साथियों ने कहा, आज रात हम ये लकड़ियां जलाकर गर्मी हासिल कर लेते हैं और यहाँ आराम कर लेते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन उदहम ने खामोशी से उनकी बात मान ली। ये वाक़या उनकी दुनियावी आसाइशों से बेरग़बती और सादगी का एक और सबूत था। एक और मर्तबा हज़रत इब्राहीम बिन उदहम बीतुल मुक़द्दस में इबादत के लिए पहुँचे। चूँकि वहाँ रात गुजारने की इजाज़त न थी, इसलिए उन्होंने खुद को एक बोरी में छिपा लिया ताकि कोई उन्हें देख न सके। रात के आखिरी पहर जब दरवाजे बंद हो चुके थे, अचानक एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए, जिनके साथ 40 कंबल पोश अफराद भी थे। इन सब ने 2 रुकात नमाज अदा की। फिर बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ गुफ्तगू करने लगे। गुफ्तगू के दौरान एक मुरीद ने पूछा, हजरत, आज रात यहाँ कोई अजनबी मौजूद है? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, हाँ, यहाँ इब्राहीम बिन उदहम हैं, जो 40 दिनों से इबादत में वो लज्जत महसूस नहीं कर रहे जो पहले करते थे। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम बिन उदहम फौरन बोरी से बाहर निकले और बुजुर्ग को सलाम किया। फिर आजिज़ी से सवाल किया, हज़रत, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है। बराह करम मुझे बताएं कि इबादत में लज्जत क्यों नहीं रही? बुजुर्ग ने नरमी से मुस्कुराते हुए उन्हें रूहानी हकीकतों का दर्स दिया और कहा, अल्लाह की मोहब्बत में सच्चा बनना सीखो और अपने दिल को दुनिया की ख्वाहिशात से खाली करो। जब तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद हो जाएगा, तभी तुम इबादत की लज्जत दोबारा पा सकोगे। हज़रत इब्राहीम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह की सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत, इबादत, सादगी और दुनियावी लज्जतों से कुनारा कशी का मजहर थी। उनकी एक और नसीहत बहुत मशहूर हुई जब एक शख्स उनके पास नसीहत लेने आया। हज़रत ने फरमाया, जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसे बंद करो। वो शख्स हैरान होकर बोला, हज़रत, मैं इस बात को नहीं समझ पाया, वजाहत फरमाइए। हज़रत ने फरमाया, रुपए की थैली जो बंद है उसे खोलो यानी सखावत करो, और जो ज़बान खुली है उसे बंद करो यानी कम बोलने की आदत डालो। जब तक तुम अपने आप को फ़कीर, अपनी बीवी को बीवा और अपने बच्चों को यतीम न समझो, तुम अल्लाह वालों की सफ़ में नहीं बैठ सकते। यही रूहानी हकीकतें उनकी सादगी, इबादत और दरवीशी के तर्ज ज़िंदगी को वाज़ेह करती हैं। हज़रत इब्राहीम बिन उदहम हमेशा अल्लाह की रज़ा की जिस्तजू में रहे और इसी मकसद के तहत दुनियावी राहतों को तुर्क कर दिया। उनके 2 जलील अल कदर खुलफा थे, हज़रत ख्वाजा हुज़ैफ़ा अल मुराशी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, जो उनकी तालीमात से फ़ैज़ याब हुए और तसव्वुफ़ के अज़ीम रहनुमा बने। हज़रत इब्राहीम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू भी था जहां उन्हें कहीं भी करार नहीं आता था। वो हमेशा लोगों की नज़रों से छिपे रहते थे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी क़ुर्बत हासिल करना था। आपकी ज़िंदगी एक रोशन मिसाल है कि जब कोई इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो वो दुनिया की लज़्ज़तों और फ़ानी चीज़ों से कुनारा कशी अख्तियार कर लेता है और अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर देता है। हज़रत इब्राहीम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वक्त भी रूहानियत से भरपूर था। बाज़ रवायात के मुताबिक आपका मकबरा बगदाद में है, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक आपका वसाल शाम में हुआ। ताहुम मुस्तनद रवायत यही है कि हज़रत इब्राहीम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकबरे के करीब एक गार में क़ियाम पज़ीर थे और वहीं आपका वसाल हुआ। आपका वसाल 26 जमादी इलावली 280 हिजरी में हुआ। आपके वसाल के वक्त एक गैबी आवाज़ सुनाई दी जिसमें ऐलान किया गया, ये अल्लाह का बंदा था और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हो गया। ये आवाज़ सुनकर लोगों को बड़ी हैरत हुई। बाद में तस्दीक हुई कि हज़रत इब्राहीम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हज़रत इब्राहीम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और वफ़ात हमें यह दर्स देती है कि इंसान को अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात तुर्क करके अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा की जुस्तजू करनी चाहिए, क्योंकि यही असल कामयाबी और फलाह है। आपकी ज़िंदगी की दास्तान एक ज़िंदा मिसाल है कि अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को कुर्बान करना, दुनियावी आसाइशों से दूर रहना और उसकी इबादत में महू रहना ही इंसान की असल मंजिल है।